हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर निर्मल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक टॉक। Hi guys, so today we will be talking about how your day should look like. In my previous video, I talked about that how to make a timetable, okay, or schedule for the 4 months that you have. Okay, I gave few tips on. In this video, I'll be telling you exactly how your day should look like. You can take advice from this schedule. You don't have to copycat this schedule. Okay, you can make your own schedule if you are an intern. Okay, you have to make your own schedule according to your duties. But one thing is must that you should read every day you should read. Okay, कोई भी दिन ऐसे छोड़ना नहीं है कि आज मैं थोड़ा आज मेरी इमरजेंसी हुई है तो आई विल टेक सम रेस्ट. गिव एटलीस्ट 1 hour to study, then you will then your sleep will be very satisfying. Okay, so it's the best thing is read every day. At least the minimum you should read is 1 hour and the maximum is 10 to 12 hours. Okay, don't stretch more than that. Okay, because sleeping is also a must thing. Now let's start with the video. Now what I used to do, this is my schedule. Okay, what I used to do is I used to wake up at I used to wake up at 6 a.m. Okay, I used to wake up at 6 a.m. Then after 6:30 I used to read my wall, or you can read your doomsday book. Okay, doomsday book should be read. Doomsday book, I used to read my wall and doomsday book in that half an hour. You don't have to complete your book on that in that half an hour, but अगर कुछ भी पढ़ लोगे, लाइक अगर तुम आधे घंटे में 20 पेज भी पढ़ लोगे, 15 पेज भी पढ़ लोगे, सो एवरी डे यू हैव टू डू इट एवरी डे, देन इट विल बी इनफ. Okay, then after 7 I used to go for breakfast, and usually I used to cook my breakfast. Okay, you don't have to rely on your mom or your if you are living in a hostel on the mess worker. You can cook your breakfast. You don't have to be a heavy breakfast. Go for a light breakfast, and you can cook it by yourself. It refreshes your mind. Okay, so from 7 to 8 a.m. I used to do my breakfast. Then this is a very common practice. Yes, I have seen in so many of my friends who got a decent rank in this exam. Okay, from 8 a.m. to 10 a.m. I used to do my MCQs, right? Because the exam time is in the morning. So from 8 a.m. to 10 a.m. I used to do my MCQs. Okay, uh, if you want to do that, this is the best time, because the exam time is 9. Okay, and if you have a practice to start your MCQs from 8 to 10 a.m., the starting 1 hour is very crucial for the exam, and you should know. Okay, so I used to give my exam in 8 to 10 a.m. Okay, MCQs. Then after 10 a.m. for 10 to 15, I used to take a break from MCQ, because now I will be starting my studies. So I will take a 15-minute break, and yeah, I used to listen music. So you can like refresh in this time. Okay, I used to listen music in that time. Then the slot, I have given my day into 3 slots. I call it study slot 1, 2, and 3, and every slot is for 3 hours, because I can continuously study for 3 hours only. I cannot study for 6 or 7 hours continuously. Okay, I have to take some breaks. So I gave my schedule 3 slots for studying. Every schedule is of 3 hours. Every slot is of 3 hours. So my first slot is 10:15 a.m. to 1:15 a.m. Okay, p.m. Sorry, and this is my first study slot. This is of 3 hours. Then from 1:15 p.m. to 2:50 p.m. I used to do my lunch. Okay, and nap. See, my whole 50% of my preparation is during the summers, and after eating your lunch, you feel like you need to take some nap. So I used to take power nap, 10 to 15 minutes power nap. Okay, so 1 hour is there for lunch and a power nap. It will refresh your mind. Then the second slot of my study comes 2:15 p.m. to 5:15 p.m. I used to study. Okay, again 3 hours. This is second study slot 2, right? Then after 5:15 p.m. to 5:45 p.m. this is like my practice. मैं ऐसा करता था. I am not saying कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, but मैं ऐसा करता था कि मैं अपनी चाय खुद बनाता था. अब मैंने 3 घंटे लगातार पढ़ लिया है, तो आई हैव टू टेक हाफ एन आवर ब्रेक, जिसमें मैं 15 मिनट में अपनी चाय बना लेता था खुद जाके, और बाकी 15 मिनट में अपनी चाय टेरेस पे इंजॉय करता था. सो बेसिकली आपको अपना माइंड रिफ्रेश करना है, चाहे जैसे मर्जी करिए. यू हैव हाफ एन आवर फॉर दिस. ओके,
तो मेरे लिए तो था कि मैं अपनी चाय खुद बनाता था, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। मेरी प्रिपरेशन मोस्टली घर पे रही है, तो मैं अपनी चाय खुद बनाता था। अगर आप मेस में हो तो आप चाय के लिए बोल सकते हो, आप वॉक करने जा सकते हो हॉस्टल में। अगर आप लाइब्रेरी में तो भी आप वॉक करने जा सकते हो फॉर लाइक हाफ एन आवर। वो आपको फिजिकली भी अच्छा रहेगा, और फिजिकल एक्सरसाइज के बाद माइंड बहुत अच्छा चलता है। सो बेसिकली कुछ भी करना है जो आपको रिफ्रेश कर सके, ओके, क्योंकि आप सुबह से पढ़ रहे हो। देन आफ्टर, ओके, सो दिस इज इवनिंग टी टाइम, ओके, यू कैन लाइक यूज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। 5:45 PM to 8:45 PM के लिए मेरा था थर्ड स्लॉट। दिस इज अगेन 3 hour स्लॉट। सो बेसिकली अभी तक मैंने 9 hours के लिए 3 स्लॉट्स में 3 3 hours करके 3 बार पढ़ लिया है। सो दीज 9 hours आर जस्ट फॉर रीडिंग द नोट्स ओनली, ओके। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इनमें। 2 hours फॉर MCQ। टोटल 11 hours हो चुके हैं अभी तक जो मैं पढ़ रहा हूँ, एंड इट्स जस्ट 8:45 PM, ओके। देन आफ्टर 8:45 to 9:30 PM, अराउंड 45 मिनट्स ब्रेक में हम डिनर करते थे, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस। अगर आप हॉस्टल में हो तो आपको अपने रूम में डिनर करना है कि मेस में जाके डिनर करना है। अगर आप घर पे हो तो आपको अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है कि आपको अकेले में डिनर करना है। मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करता था, ताकि मैं उनको बता सकूं मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा है। इससे क्या होता है कि उनको भी पता रहता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, एंड और आपको भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि आप उनको बताते हो। ये काफ़ी सेटिस्फाइंग एक चीज़ है जो मुझे लगती थी, एंड हॉस्टल में ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को बताते हो तो इंस्टेड ऑफ एनकरेजमेंट कुछ और ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपने घर वालों को बताओ जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को बताओ जो आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक द रियल फ्रेंड्स, ओके। और मेडिकल स्कूल में रियल फ्रेंड्स तो मुश्किल से ही मिलते हैं, बट चलो, दैट्स नॉट द टॉपिक टुडे। So 8:45 PM to 9:30 PM डिनर टाइम, ओके। देन वन थिंग आई यूज टू डू, मैंने काफ़ी लेट शुरू करा था इसको, बट मैंने करना शुरू कर दिया था। वी कॉल इट, प्रेपलेटर ऐप में हम इसको ट्रेजर्स बोलते हैं, एंड अगर हम मैरो की बात करें आई गेस इसको पर्ल्स बोलते हैं। सो ये होता क्या है बेसिकली, ये कुछ टेबल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने कंसाइज करके दी होती है। अगर आप वो पढ़ लो आधा घंटा रात को सोने से पहले तो बहुत बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज आप पहले भी सो सकते हो। सो व्हाट आई यूज टू डू इज 9:30 PM से बाद 10 PM तक आई यूज टू रीड माई ट्रेजर्स, ओके, एंड देन उनको बुक मार्क कर लो। एंड जब भी तुम अपना ग्रैंड टेस्ट देने वाले हो उनको अगर तुम देखोगे तो वो बहुत बेनिफिशियरी होते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू, अगर आपको पढ़ने हैं तो 30 मिनट्स फॉर ट्रेजर्स और पर्ल्स। पर्ल्स मैरो में बोलते हैं और ट्रेजर्स हम बोलते हैं प्रेपलेटर में। देन 10 PM के बाद आई यूज टू स्लीप, ओके। सो गुड नाइट हो जाता था पूरा, एंड घर पे जनरली लोग जल्दी सो जाते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, पर हॉस्टल में ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हॉस्टल में टाइम लगता है, लोग लेट सोते हैं, कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है, तो वो आपको खुद देखना है। बट आई यूज टू स्लीप एट 10 PM, एंड देन आई यूज टू टेक 8 hours sleep, which is must. You should sleep. Minimum sleep that you should take is 8 hours. लोग क्या करते हैं कि हम अपनी स्लीप को कम कर लेंगे ताकि हम और ज़्यादा पढ़ सकें। मुझे ये सही नहीं लगता, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हो तो अगर आप जब सुबह उठोगे आप रिफ्रेश नहीं होंगे, ओके, तो आप पढ़ कैसे पाओगे? आपको दोबारा पूरे दिन के लिए पढ़ना है, एंड यू शुड गिव प्योर जस्टिस टू दीज 8 hours ऑफ स्लीप, ओके। अपना फ़ोन नहीं चलाना है सोने से पहले, आपने कुछ नहीं करना है। आप ट्रेजर पढ़ के सोओगे तो ये नींद और ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगी, क्योंकि आपने आधा घंटा और पढ़ाई करी है। सो ऑन एंड ऑल आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो। आप अपने इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट अ टाइम टेबल, ओके। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। दिस इज जस्ट अ टाइम टेबल दैट आई फॉलोड। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। So I guess that's all. Thank you from my side.